Well, sir, we'll start with you. This is action packed, power packed. You've been seeing it a million times in your edit studio. जब लोगों के साथ देखते हो और जो सीटियां सही वक्त पर चलने लग जाती है, how are you feeling looking at it? अरे सब लोग तो मेरे ही है यार सारे मतलब the main thing is 15th Attendance तो full है. 15th August को जब that's when we'll go out to the theaters and cinema halls, and then hopefully that मतलब we'll not be able to hear the dialogues, But which they're are very very good by the way. absolutely. But ये, this combination between you and John sir is always fantastic. And like I say, कई बार believable नहीं लगता है कुछ चीजें जब हम बड़े पर्दे पर देखते हैं. आप दोनों की जो केमिस्ट्री है फॉर एक्शन इतना बिलीवेबल लगता है. So the first time, कई बार हो चुका है. We've seen it on big screen also. What is this magic and how does this always happen? Because I think when John hits something, it looks as if it's going to break, right? So I mean, Salim Saab told us that told me one day, Salim Saab said that they created Amitabh Bachchan, right? Salim and Javed, they created Amitabh Bachchan, and nowadays आजकल के जो हीरो है जब वो लोग गन पकड़ते हैं उनको आप कहना चाहते हो बेटा रख दो चल जाएगी, right? With John, it looks as if it's a part of his hand, right? And so it's like, I mean, it's very the important thing is how do we keep challenging him? How do you make it more difficult for him? How do you keep making it more and more difficult for him to do something which is like which is not done before? So yeah. But John, you're just way beyond just the physicality of it. मुझे याद है कि हम लोग कई बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं. अब बॉडी है तो है, but you've gone way beyond that in the last many years. और बॉक्स ऑफिस पर चाहे सत्यमेव जयते हो, चाहे बाटला हाउस हो, वो भी चल जाती है. You've learned how to use this beautiful physicality and it doesn't overpower the screen with that. वो है, अब बाइसेप है तो है, लेकिन पावर पैक भी बहुत परफॉर्मेंस हो जाती है. Is there also that special understanding between निखिल जब आप फिल्में बनाती हो उनके साथ भी? How not to showcase, अभी सिक्स पैक नहीं दिखाना है, वो जमाना जा चुका है. आप सब कुछ दिखा चुके हो. So the next part of it, moving forward, which is true. सब कुछ दिखा दिया. बिल्कुल. Yeah. But moving forward also, this now looks so real. We love watching. तभी सीटियां actually निकल जाती हैं. So there's that special understanding also when you're making action cinema with him. Yeah, with Nikhil, it's he just has to walk up to me and he's about to give me a brief, and I say, yeah, that's what you want. Yeah, okay. So it's a mental connection that two of us have, and I always say this, and I don't know whether I'm politically correct in saying this, कि आप फिल्म को जितना भी मार्केट करो कुछ फायदा नहीं अगर फिल्म खराब है. You can market it till the cows come home. I think Veda is a damn good film, and I'm saying this on record. It's a very very good film. The assumption would be कि आप एक टाइप का ऐसा रोल पकड़ेंगे और बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं. तो जो आपने रूल बुक को बाहर फेंक दी है इसके बारे में जरूर बताएं. My heart is pounding a little bit. Now you should be used to it. I'm also seeing this trailer in the theater with so many people and this kind of sound effects for the first time. So my heart is pounding. That's you guys will hear my heart. But I'm just grateful actually at this point for everything that has happened so far. Like you said, of course, my journey has not been the you know that your first film comes and then it doesn't work the way you wanted it to work. It's been a 3-year gap, like you said, so it's been a while. But a film like Veda, I just want to say thank you to Nikhil sir, the main person, the first person who's given me this film. And I just want to say thank you because this film has not, I think I found confidence in myself when I was on this set. I have found confidence when he gave me this film because for an actor like me, it's important for a director like Nikhil sir to just believe in me. Forget the end product, forget what happens, etc. But the fact that he put his faith in me, that just means the whole world to me because that has changed everything for me. It has made me a different person. It has made me a different actor. And thank you, Nikhil sir. धीरे धीरे करते 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 you made such a lovely name for yourself. Also पहले तालियां इनके लिए भी हो जाए बॉस. जब भी लोग बोलते हैं ना कि अपने बलबूते पर अपने दम पर लोग जब बड़े हो जाते हैं एंड धीरे धीरे करके अच्छे परफॉर्मेंसेस के साथ एंड नाउ यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ सक्सेस ब्रदर. यू आर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. और अभी जॉन के सामने अगर जब मारपीट भी करनी होती है, देखिए आपको मसल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप तो बेस्ट यही हो. बाकी सारी जो उनको ऐसे 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 आना पड़ता है. So congratulations on pure talent also and what a wonderful performance. थोड़ा बहुत देखा है सिर्फ obviously, but इन पे भी काम करके और इनके साथ काम करके कैसा लगा आपको? नहीं, आई थिंक मैं जब कॉलेज में था और मैं किसी को बोलता था कि मैं एक्टर बनूंगा तो बोलता तू विलन बनेगा.
मतलब वो कभी, हाँ मतलब हमेशा से क्या होता है, चरित्र क्या पता नहीं अच्छा। मतलब चेहरे पे ऐसा कुछ था या क्या चरित्र की बात है। तो आई थिंक उन सारे कॉलेज के दोस्तों को बोलना चाहूंगा कि मैं फाइनली विलन बन गया, और वो भी जॉन अब्राहम के ऑपोजिट। सो यू नो आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड मैंने निखिल सर को ऑलमोस्ट चेस किया था, वो किसी और एक्टर से बात कर रहे थे कि यार तुमसे मिलना है, मैं घुस गया था बीच में कि सर मुझसे ही मिल लो। और फाइनली जब मैं मिला तो अरे क्या आप, मैं नाम बोल दूंगा इस एक्टर का लेकिन लेकिन फाइनली मैं इनको संडे को मिला था और इन्होंने मुझे ये वेदा की स्क्रिप्ट जो है मैंने वहाँ पढ़ी, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स आई एवर रेड। एंड आई रियली रियली मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कास्टिंग के काम की वजह से भी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल स्क्रिप्ट, और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। एंड आई मीन, and it's a privilege to work with this team and this director. I still remember this one small thing. It was a talkie scene, and Nikhil sir just came and told me that इसके बस तू action scene की तरफ देख। ये छोटा सा जो एक टिप था, that changed a lot in the performance. So I'm grateful. Thank you, sir. Thank you for being there throughout this journey. And now, I was just stunned that nobody was having a conversation with us. Right, I was just stunned that nobody was having a conversation because we've had a great journey. Whether it was Batla, which was a tough film to make and a tough film to get through, or whether it was Mrs. Chatterjee versus with Norway, where we had done some kind of I mean, I think we have made a couple of mistakes in terms of rephrasing the Sushma Swaraj speech, and the censors really helped us because they said we want you to maintain it as an external affairs minister, and you got to change this, etc., etc. We did those kind of stuff. So really, at the end of the day, it was and my journey with D-Day also, right? I had been through examining committee and revision committee, and so I knew that Bharti, I knew that very well that this film was going to have a journey, right? Um, it's just that because we knew that 15th August is such an integral part of whatever is John and my journey, right? In the sense that both Satyamev Jayate and Butler houses come on that day, and it really is we are very superstitious about it, and we think that it really can benefit the film, especially a film like this. So we really wanted to hit that, and that's why we were actually really uh, a little surprised with nobody was having a conversation. But eventually I just have to say that I was flawed by the way they approached it when they finally saw it and they understood the context in which the film had been made. They understood everything. 15 अगस्त अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन होता है। कुछ साल पहले तक तो 15 अगस्त, अभी भी 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन है, लेकिन कुछ सालों से 15 अगस्त एक चीज और के लिए जाना जाता है, वो भी जॉन अब्राहम के फिल्म के लिए कुछ सालों से। तो बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी। लेकिन ऑन स्क्रीन तो आपने देश के लिए बहुत सेवा किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत गलत होते हुए भी रोका है आपने। लेकिन क्या रियल लाइफ में कभी कुछ, पूरे देश का तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपके आसपास कुछ गलत हो रहा हो तो क्या कभी आपने कोशिश किया है कभी, या कोशिश करेंगे आप कुछ गलत रोकने का? Yeah, definitely. Like every citizen of this country, कोशिश definitely करूंगा मैं क्यों, सब लोग करेंगे कोशिश। कभी मौका मिला है सर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे इसमें? Maybe some other time on some other, लेकिन करूंगा definitely. We are all good citizens. यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, we all want to do good for the country. तो हम लोग सब करेंगे। मेरा सवाल ये है, एक लंबे ब्रेक के बाद जब शाहरुख खान साहब ऑन स्क्रीन पे आए तो जवान ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। क्या आपको लगता है वेदा भी वो कमाल कर पाएगी? और वेदा को इतने लंबे अरसे के बाद आपने साइन किया, इसकी यूएसपी क्या लगती है आपको? जी आई डोंट नो अभी उसका जवाब कैसे दूं, लेकिन आई जस्ट टेल यू with all due respect to Patla House और जो भी हमने साथ में करा, I think Veda is the best film that Nikhil and I have done together. It's outstanding. तो और मैं सच बोल रहा हूँ कि and I'm repeating again कि and this is what I try and explain to जितने सारे हमारे studios है, marketing people है, and I try and explain the nicest possible way, क्योंकि all credit to Z, they're a fantastic team. लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि if your film's not good, no amount of marketing will help the film. तो मैं बहुत confident हूँ और मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ सबके सामने, Veda's a damn good film. It's a very good film और चलेगी, कितना चलेगी मुझे पता नहीं। Veda's got Nikhil Advani as director, it's got Abhishek Banerjee, it's got Sharvari Vav, it's got fantastic actors in this film जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ,
cinematography, action, Malay, Amin Bhai, and a lot of other things. तो फिल्म का जो USP is everything. It's not just one thing. And it's और मैं on record कहना चाहता हूँ. It's I am also half Parsi. Please understand. कि जो बुरा है मैं बुरा बोलता ही हूँ. I don't care. Veda is a good film. It's a very good film. I'm confident. जॉन सर मेरा क्वेश्चन आपसे है सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई बहुत अच्छा आपका ट्रेलर है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा आपने इसमें किया है लेकिन लगातार आप की सत्यमेव जयते आई उसका पार्ट 2 आया पठान भी हमने देखी बहुत अच्छा बिजनेस किया लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लगातार आप एक ही तरह का रोल कर रहे हैं खास तौर से एक्शन पे ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा क्यों है कुछ नया लाइए ना सर मैं हिंद समर्थन से आपने फिल्म देखी है नहीं अभी तो नहीं देखी लेकिन ठीक है ट्रेलर से अंदाज हो गया can I call out bad questions and idiots सर मुझे ट्रेलर से अंदाज होगा कि वो उसी तरीके का जैसा नहीं मैं तो आपको सिर्फ डायरेक्टली कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म अलग है मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेंस परफॉर्मेंस जो मैंने करा है एंड ऑफ कोर्स आपने फिल्म देखी नहीं है ट्रेलर देखा है फिल्म देखिए आप उसके बाद आप जज कीजिए एंड देन आई एम ऑल योर्स व्हाटएवर यू से हाँ बट इफ यू आर रॉन्ग आई एम गोइंग टू टर्न यू अराउंड एंड टेल यू अपार्ट हेलो जैसे आपने कहा कि मेरा जो प्रेप रहा है वेदा के लिए ऑफ कोर्स दिस कैरेक्टर डिमांडेड अ लॉट फ्रॉम मी बिकॉज ये राजस्थान में सेट है जिसके लिए भाषा का जो लहजा होता है वो आपको चेंज करना पड़ता है जैसे जैसे कि हर किलोमीटर पे पानी बदलता है वैसे भाषा भी बदलती है तो आई थिंक कि एज एन एक्टर मैं हमेशा से बहुत हंग्री और ग्रीडी रही हूँ इस चीज़ को लेके कि जब कोई किरदार आता है तो मैं सबसे पहले ये खोजती हूँ कि इसमें मेरे प्रीवियस किरदार से अलग क्या है और मुझे वो बहुत एक्साइट करता है ये जो छोटी चीज़ें होती है कि कैसे चलना है कैसे बैठना है कैसे बात करनी है और बात करने में भी एक होता है लैंग्वेज दूसरा होता है उसकी पेस वो किस पेस किस मीटर पे बैठता है किस पिच पे बैठता है आई थिंक ये सब जो काम है मुझे बहुत पसंद है मुझे प्रेप में बड़ा मजा आता है और ऑफ कोर्स निखिल सर वाज द मेन गाइड क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारी रीडिंग्स हुई मेरी महादेव जो यहाँ पे हैं उन्होंने एक्चुअली सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज क्योंकि मैं महाराष्ट्र हूँ और थैंक यू मैम तो जो डिक्शन आपको ऑफ कोर्स यू नीड हेल्प ये ऐसे नहीं होता कि आप मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी फ्रॉम इन एंड अराउंड दिस रीजन ताकि मैं रियल लोगों को सुन पाऊँ रादर देन गोइंग टू फिल्म्स और गोइंग टू एनीथिंग एल्स ऑल्सो एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है राजस्थानी और हरियाणवी में जो मुझे भी नहीं पता था लेकिन ऑफ कोर्स माय डिक्शन कोच बॉट इट अप टू मी और आई थिंक कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है सो and also it's a very emotional story, very brave story. Apart from the fact that, of course, as a character, there was a lot of backstory that I had to build. It was not just about the language, not just about boxing, not just about anything else. Because ये जो कहानी होती है ना, हर कहानी फिल्मों में कहीं बीच में से शुरू होती है, लेकिन हम किसी की जिंदगी प्ले कर रहे होते हैं और इस जिंदगी के अगर वेदा 16-17 साल की है तो उसने 16-17 साल जिए हैं, वो कैसे जिए हैं, तो वो सब पे काम करना तो वो मेरा प्रेप रहा है और आई वुड से कि मुझे इससे ज्यादा मजा कभी नहीं आया है प्रेप करने में इवन दो दिस अ वेरी वेरी टफ स्टोरी लेकिन एज एन एक्टर आई हैव ऑलवेज जस्ट वांटेड टू प्ले समथिंग लाइक दिस एंड अगेन आई वुड से थैंक यू 2003 में आपने जिस्म फिल्म से डेब्यू किया था उसके बाद से लेकर अब तक आपने सभी विलन्स के सारे जिस्म की सारी हड्डी तोड़ी है मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपको कभी एक्शन सीन करते टाइम ऐसा कभी डर लगा है कि यार ज्यादा ताकत लग गई तो लेने के देने हो जाएंगे और सामने जो खड़ा है इसकी उतनी इज्जत भी करना है आप ये फिल्म देखिए एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग विदाउट टेलिंग यू मच ऑफ द स्टोरी इसमें जो एक्शन आप एक्शन की बात कर रहे हो द एक्शन दैट अभिषेक बैनर्जी हैज डन इन दिस फिल्म मजाक नहीं कर रहा हूं मैं इंटिमेशन पॉइंट मतलब आप इनके लिए तालियां बजाओगे नंबर 1 क्लाइमैक्स में इनके लिए आप तालियां बजाओगे सो आई थिंक इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन कि एन एक्टर बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ हिज ओन इमेज जैसे सलिल ने कहा बाइसेप्स है ये है वो है लेकिन जो इंटेंसिटी अभिषेक हैज ब्रॉट टू द कैरेक्टर इज अनबिलीवेबल अभिषेक इज आउटस्टैंडिंग तो मैं अपने एक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा यू सी हिम इन द ट्रेलर ही इज आउटस्टैंडिंग एंड जॉन इज वेरी हम्बल आल्सो एंड ही लाइक्स टू ऑलवेज बट व्हिच इज द ट्रूथ आल्सो बट ये बात सच है ये जो बोल रहे हैं कि अभिषेक तो बहुत कमाल का काम किया है जॉन ने आपकी तारीफ की है एक्शन को लेकर तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे I mean, I think
being too sweet. I tried जितना मतलब हो सकता है मैंने किया. मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैं इनको सेट पे मिला था और मैंने उनके डोले देखे थे, मुझे कैसे होगा, ये कैसे करूँगा मैं, how do I even stand in front of him. But yeah, I think but बात ये है कि हम हमेशा एक्शन और ये जो आप बात कर रहे थे कि मतलब एक्शन फिल्म में हर कैरेक्टर का एक्शन अलग होता है और वही कमाल की बात होती है कि आई थिंक इवन इफ द कैरेक्टर इज हिटिंग इन अ सर्टेन वे, ही इज हिटिंग विद द कैरेक्टर. तो हम इसको एक्शन बोल रहे हैं लेकिन मेरे लिए जैसे कहते हैं देसी रॉ एक्शन फिल्म है और उसमें ड्रामा उतना ही ज्यादा है और उस ड्रामे की वजह से जो है मुझे लगता है कि एक्शन का वेट बढ़ता है. सो वो जो बिल्डअप कहते हैं ना, जो आई थिंक निखिल सर बार बार बोलते थे कि बिल्डअप वो जो टेंशन जब बढ़ता है तब वो एक्शन में रिलीज होता है और वायलेंस का तभी फायदा है जब मतलब उसका कोई रेपुटेशन हो. तो इस फिल्म में आप वायलेंस का रेपुटेशन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि चोट लगी अगले सीन में ठीक है, सो दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक इज यूनिक टू दिस फिल्म. आपकी जो फिल्म है स्त्री 2 और वेदा एक ही दिन रिलीज हो रही है, तो जब एक एक्टर की दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होती हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? मैम मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. मैं आई थिंक 15 के बाद मुझे समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है. अभिषेक बैनर्जी का जो क्यूमुलेटिव कलेक्शन है, no one will be able to touch. You can't compete with him on this day. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.